Very good morning, students. I'm sharing this video of chapter number 13, Trial Balance. As we have discussed that this is simplest chapter, and I'll explain by this video. So here is the theory, meaning of trial balance. See, a trial balance is a statement prepared with the debit and credit balances of ledger accounts to test the arithmetical accuracy of the books. Now, trial balance is not an account, it is an statement, yes, where we are just recording all the balances like salary account debit balance, purchase account debit balance. Yes, I have discussed such things in class. Yes, so it is statement where we are recording debit and credit balances of ledger accounts, and we are just checking that total of debit and credit is equal or not. Yes, so it is prepared to test arithmetical accuracy of the books. Trial balance is the list of debit and credit balances taken out from ledger. It also includes the balances of cash and bank taken from the cash book. As I have explained you in the class that in ledger posting we are preparing each and every ledger. Yes, हम हर account बनाते हैं and उसका हमें कुछ balance मिलता है. Yes, at the end we are getting or debit balance or credit balance of each and every account. Yes, so by those balances we have to prepare trial balance. एंड एज यू नो दैट जो हम कैश बुक बनाते हैं वो कैश बुक काइंड ऑफ सब्सिडरी बुक तो है ही, बट इट ऑल्सो वर्क एज लेजर. यस, हमें अगेन कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, एज कैश बुक इज सेम लाइक कैश अकाउंट. यस, सो जो कैश का बैंक का बैलेंस आता है कैश बुक से वो भी हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं. यस, सी ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर हैविंग posted the journal entries into the ledger and balancing the account. The balance of an account is the difference between the total of debit entries and the total of credit entries in the account. If the total of debit entries is greater, it is called debit balance. Likewise, if the total of credit entries is greater, it is called credit बैलेंस. जैसे हम अकाउंट बनाते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, लाइक दिस इज जस्ट अ रफ सैलरी अकाउंट. व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग सैलरी अकाउंट वी आर रिकॉर्डिंग ऑन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड विद द हेल्प ऑफ जर्नल. यस, लाइक यहाँ पे हमने कुछ सैलरी रिकॉर्ड की है एंड एट द एंड वी आर जस्ट मेकिंग टोटल ऑफ बोथ कॉलम. And as you know that for example here total 10,000 amounts are recorded, so obviously you have to tally with the same amount and you'll get the difference of 10,000. yes, so इस तरह से आपको जो डिफरेंस मिलता है, यहाँ पे जैसे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था तो आपको डिफरेंस जो मिला है वो क्रेडिट साइड है, बट इट ऑल्सो ट्रीटेड एज डेबिट बैलेंस. यस, डेबिट बैलेंस है. सो सेम जब आपका डिफरेंस डेबिट साइड का ज़्यादा है तो उसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस. सिर्फ हमने इक्वल करने के लिए क्रेडिट साइड सर्कल बना के लिखा है, बट इट हैज़ ऑपोजिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा है. एंड सेम इफ क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ऑब्वियसली आपका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे मिलेगा. यस, एंड इट हैज़ क्रेडिट बैलेंस. देन all ledger accounts showing debit balances are written in the column and those showing credit balances are written in the other. जैसे कि ये मैंने आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था ट्रायल बैलेंस का. सो जो भी डेबिट बैलेंसेस है, जो भी अमाउंट्स आपको डेबिट बैलेंस है किसी भी अकाउंट का, तो वो हम डेबिट के कॉलम में लिखते हैं, और जिस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है वो हम क्रेडिट की कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे. We have already discussed that under the double entry system, for every debit there is equal and corresponding credit as per dual aspect concept. Therefore, the total of debit balances in different accounts in the ledger must be equal
to the total of credit balances in different account. जैसे कि हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यस, और जितना भी अमाउंट हम डेबिट करते हैं वो सेम इक्वल क्रेडिट भी करते हैं, यस। हो सकता है अलग अलग अकाउंट्स में हमने अमाउंट्स डाली हो, बट जो भी हम डेबिट करते हैं इतना ही क्रेडिट भी होता है। एंड सेम जो हम लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसका भी टोटल दोनों का इक्वल आना चाहिए, यस। सी, मैचिंग ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस does not mean that recording of transaction in the books of account are free of error. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस का हम टोटल करते हैं चेक करने के लिए एक्यूरेसी, यस, कि हमने सब कुछ प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है कि नहीं। बट समटाइम्स व्हेन वी आर गेटिंग द टोटल इक्वल, यस, बोथ डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल आर इक्वल, बट हो सकता है कि उसमें कुछ एरर भी हो, yes, it only ensure arithmetical correctness of posting. जब टोटल इक्वल आ रहा है इट मीन्स अरिथमेटिकली वो एक्यूरेट है, बट हो सकता है उसमें कुछ रूल वाइज या लाइक डेबिट क्रेडिट का रूल का कुछ एरर हो, लाइक बाय मिस्टेक सेम अमाउंट आपने 10,000 डेबिट की है जो नहीं होनी चाहिए एंड सामने सेम 10,000 आपने क्रेडिट भी की है। सो इस टाइप का एरर आपको दिखेगा नहीं, यस। So we are just checking, we are just ensuring the arithmetical correctness. Then there are some features, yes, characteristics or features of trial balance. It is a list of balances of ledger account and cash book. जैसे मैंने बताया हम ledger बनाते हैं और उसके जो भी balances मिलते हैं उससे trial balance बनता है, and same cash book का भी जो balance आता है वो भी हम trial balance पे record करते हैं। It is not a part of double entry system of bookkeeping. It is a result of double entry system of bookkeeping. It is only a working paper. ये कोई स्टेप नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं, यस, हम सिर्फ स्टेटमेंट बनाते हैं। सो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इट इज़ रिजल्ट ऑफ वॉट एवर द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स वी हैव डन टिल नाउ, यस। It can be prepared on any date if the accounts are balanced. जब हम अकाउंट बैलेंस करते हैं, ये डिफरेंस फाइंड करते हैं, दोनों साइड टोटल इक्वल करके जो डिफरेंस फाइंड करते हैं उस दिन हम ट्रायल बैलेंस बना के एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। देन it verifies the arithmetical correctness of posting of entries from the journal to ledger. जो भी हमने जर्नल से लेजर में पोस्ट की है एंट्रीज, यस, लेजर पोस्टिंग जो की है वो प्रॉपरली हुई है कि नहीं, यस, हम ट्रायल बैलेंस बना के डेबिट का क्रेडिट का टोटल मैच करके अरिथमेटिकल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ of the accuracy of the books of the account, since some errors are not disclosed by the trial balance. For example, error of principal. For example, error of principal and compensating error are not shown by trial balance. जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी अमाउंट हमने डेबिट बाय मिस्टेक की है उतनी ही अमाउंट अगर बाय मिस्टेक हमने क्रेडिट की है, सो हमारा टोटल तो इक्वल आ जाएगा, बट सिर्फ हमारा टोटल वाइज मतलब हम हमारी अरिथमेटिकल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, बट उसके अंदर हमने क्या रूल का कुछ एरर किया है, कुछ प्रिंसिपल का कुछ एरर किया है, सो वी कैन नॉट डिटेक्ट दैट एरर, यस। इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जैसे मैंने आपको बताया था फाइनल अकाउंट हम किसके बेस पे बनाते हैं, तो हम ट्रायल बैलेंस के बेस पे बनाते हैं, यस। सो ट्रायल बैलेंस इज हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। Yes, now objectives or functions of trial balance. To ascertain the arithmetical correctness of ledger accounts. हम क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस? हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं, करेक्टनेस है कि नहीं, वो चेक करने के लिए। देन टू हेल्प प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। जैसे मैंने आपको बताया था हम फाइनल अकाउंट किसके बेस पे बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही फाइनल अकाउंट्स बनते हैं।
देन समरी ऑफ ईच अकाउंट, जो भी हमने लेजर पोस्टिंग में जो भी हमने लेजर्स बनाए हैं, यस, उसी की जो समरी है, लाइक सैलरी अकाउंट का कुछ बैलेंस आया, परचेज अकाउंट का कुछ बैलेंस आया, यस, कमीशन का कुछ बैलेंस आया, जो भी हमारे बैलेंसेस आए उसकी हम एक समरी प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस में, यस. सो इट इज समरी ऑफ ईच अकाउंट. देन फोर्थ, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स. If we are not getting the total of debit equals to the total of credit, then we can locate the error. Yes, कि हमने कहाँ पे error किया है हम वो check कर सकते हैं. Yes. And yes, the most important thing, the trial balance helps in locating errors in maintaining books of account. It should, however, be kept in mind that it does not disclose or show all the errors in the bookkeeping except the arithmetical inaccuracies. जो भी हम चेक कर सकते हैं वो, अगर हमारा टोटल इक्वल नहीं है तो हम वो चेक कर सकते हैं, बट समटाइम्स व्हेन वी आर गेटिंग द टोटल इक्वल तो भी उसमें कुछ प्रिंसिपल का, कुछ रूल का एरर हो सकता है. यस. देन limitations of trial balance. Trial balance is not a conclusive proof of the absolute accuracy of the books of the account. If the trial balance agrees, it does not mean that there are no errors in the books of account. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारा डेबिट क्रेडिट का टोटल इक्वल हो भी जाता है, सो हो सकता है कि स्टिल उसमें कुछ एरर भी हो. Yes, this is the greatest limitation of trial balance. Now see here, point wise limitations are given. The first, error of principle. कुछ प्रिंसिपल का, कुछ डेबिट क्रेडिट के रूल का कुछ एरर हुआ है, लाइक फॉर एग्जाम्पल सैलरी our expense, it is of 10,000 and same interest received 10,000, that is our income. अब सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो वो डेबिट होना चाहिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा इनकम है, यस, सो वो क्रेडिट होना चाहिए. अब बाय मिस्टेक देखो अमाउंट सेम है, मैंने जब ट्रायल बैलेंस बनाया सो सैलरी डेबिट की जगह मैंने क्रेडिट कर दिया और इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया. सो टोटल तो मेरा इक्वल आएगा क्योंकि यहाँ पे अमाउंट तो सेम है, बट यू कैन चेक कि यहाँ पे प्रिंसिपल का एरर हुआ है. यस, मैंने रिकॉर्ड प्रॉपरली नहीं किया है. सो इस टाइप का एरर हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा. यस. देन द सेकेंड एरर इज compensating error. See, sometimes we are recording by mistake any account on debit side and by mistake any account on credit side. So it will compensate. Yes, by mistake जो डेबिट नहीं होना चाहिए वो डेबिट कर दिया, सेम बाय मिस्टेक जो क्रेडिट नहीं होना चाहिए वो क्रेडिट कर दिया, तो सामने सामने एरर कंपनसेट हो गया. ट्रायल बैलेंस तो टोटल इक्वल आ जाएगा बट वो उसमें एक एरर अभी भी होगा. Yes, that is also limitation. Then third, transactions completely omitted from recording in the books. Like अगर मैं इसी का ही एक एग्जांपल दूं, like ये दोनों चीज़ मुझे ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करनी थी. Yes, सैलरी मुझे डेबिट साइड रिकॉर्ड करना था एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना था, बट आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड बोथ बैलेंसेस. मैंने दोनों बैलेंसेस रिकॉर्ड नहीं किए. सो मेरा टोटल तो टैली हो जाएगा बट मैंने दो चीज़ें उसमें मिस कर दी है, मैंने दो चीज़ें वहाँ पे नहीं लिखी है. आई ओमिटेड 2 बैलेंसेस. यस, सो स्टिल उसमें एरर होगा बट वी कैन नॉट डिटेक्ट इट. देन रिकॉर्डिंग बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. समटाइम्स वी आर रिकॉर्डिंग all the aspects in the books, but when we are recording the same aspect twice, that might be recorded in trial balance and we are getting the total. Yes, हमें टोटल तो मिल जाएगा बट वो सेम एस्पेक्ट हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है. लाइक ये सैलरी और इंटरेस्ट मुझे एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट करना चाहिए, मैंने 2 बार डेबिट 2 बार क्रेडिट कर दिया. अगेन टोटल तो सेम आ जाएगा बट वी कैन नॉट लोकेट द एरर.
यस, ऐसा हो सकता है. देन पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट ऑन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट इज नॉट रिफ्लेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस. काफ़ी बार हम अकाउंट भी प्रॉपर लिख देते हैं, अमाउंट भी प्रॉपर लिख देते हैं. यस, बट पोस्टिंग द करेक्ट अमाउंट ऑन करेक्ट साइड, जितना डेबिट होना चाहिए वो डेबिट साइड लिखा है, बट सामने मैंने अकाउंट का नाम रॉन्ग लिख दिया है. यस, लाइक फॉर एग्जाम्पल परचेज 10,000. यस, सो वो डेबिट कॉलम में आना चाहिए, मैंने डेबिट कॉलम में ही लिखा, बट परचेज की जगह मैंने सेल्स लिख दिया है. यस, या परचेज की जगह मैंने कोई और एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है. यस, सो देर इज एरर ऑफ रॉन्ग अकाउंट, मैंने अकाउंट का नाम रॉन्ग लिखा है. ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, आई कैन नॉट लोकेट दिस एरर. यस, देन रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड in the books of original entry and the same amount is debited and credited is brought out by the trial balance. मैंने कुछ जर्नल में ओरिजिनल एंट्री में ही एरर किया है और वो सेम एरर कैरी हुआ. यस, सेम एरर लेजर में गया एंड सेम एरर ट्रायल बैलेंस में भी आया. अब वो एरर भी लोकेट करना टफ है. यस, क्योंकि हमारा ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, हमने जो ओरिजिनल एंट्री की होगी जर्नल में, रॉन्गली डेबिट रॉन्गली क्रेडिट, वहाँ पे टैली हो गया, हमारा टोटल आ गया, सो हमने वही कैरी किया. सो इस टाइप का भी कोई एरर हो सकता है जो बिगनिंग से ही कैरी हो रहा हो. यस, सो दीज आर द लिमिटेशंस. समटाइम्स वी आर गेटिंग द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इक्वल. यस, बट there might be such errors which we cannot locate, which we cannot find. Yes, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो सिर्फ एक्यूरेसी चेक करता है कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आ रहा है कि नहीं. यस, सो दीज आर द लिमिटेशंस. नाउ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. लेट बी क्लियर, ट्रायल बैलेंस बनाने का सम आपके एग्जाम में आ सकता है. यस, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बाय दिस वीडियो ओनली. प्रीवियसली आई हैव एक्सप्लेन यू इन क्लास. यस, हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कैसे बनता है. इट इज़ वेरी ईजी एंड आफ्टर वीडियो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड by taking the debit and credit balances of each account including cash and bank accounts. These balances are entered separately in two columns for amount. Debit balances are placed in debit column and credit balances in credit column. It is known as preparation of trial balance by balance method. ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने की दो मेथड होती है. आइदर वी कैन रिकॉर्ड टोटल ऑफ बोथ साइड, जिसको हम टोटल मेथड बोलते हैं, जो आपकी बुक में नहीं है. यस, आपकी बुक में जो मेथड है वो बैलेंस मेथड है. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ही हुआ है कि लेजर पोस्टिंग में हम हर लेजर का कुछ बैलेंस फाइंड करते हैं. यस, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि जैसे सैलरी अकाउंट, तो उसका आपको कुछ बैलेंस मिलेगा. यस, लाइक यहाँ पे 10,000 बैलेंस है. सो ऐसे हर अकाउंट का आपको कुछ बैलेंस मिलता है. वो बैलेंस या डेबिट होता है या क्रेडिट होता है. यस, डेबिट बैलेंसेस की अमाउंट डेबिट कॉलम में हम लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंसेस की अमाउंट हम क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे. यस, एंड वी विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एंड दिस इज बैलेंस मेथड एज वी आर रिकॉर्डिंग बैलेंसेस. हम सिर्फ बैलेंस लिखते हैं. यस, सी दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस. In first column you have to write all the accounts. Yes, like आपको पूरी लिस्ट दी है, सैलरी अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, वो सारी आप लिस्ट यहाँ पे लिखोगे. Yes, then LF column, then in like if you are recording purchase, so आपको पता है कि परचेस का क्या बैलेंस होता है, डेबिट, you have to record in debit column. Then sales, यस, सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट. यस, सो यू हैव टू रिकॉर्ड द बैलेंस अमाउंट इन क्रेडिट कॉलम. यस, सो इस तरह से आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू राइट द टाइटल ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस ऑफ XYZ फर्म एज ऑन. यस, डेट लिखी जाती है. देन यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है. लाइक हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं और हमें कुछ बैलेंस मिलता है
एंड दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट. सो यहाँ पे रमेश अकाउंट का बैलेंस आया है 17,920 एंड इट इज डेबिट बैलेंस. सो यहाँ पे आप लिखोगे रमेश अकाउंट, यस, एंड सी इट इज रिकॉर्डेड ऑन इन डेबिट कॉलम, यस. सो इस तरह से ट्रायल बैलेंस बनता है. एंड देर आर सम पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड at the time of preparing trial balance. Let's see. Trial balance is prepared with the help of ledger and cash book. हम लेजर के बैलेंसेस लिखते हैं, हम कैश बुक का बैलेंस लिखते हैं. While preparing trial balance, all the accounts, asset, liability, capital, expense, revenue, all are considered. These ledger accounts except cash and bank balances are taken from ledger accounts. सारे अकाउंट्स हम बनाते हैं लेजर बुक में. सो लेजर बुक से हम सारे बैलेंसेस लेंगे एंड कैश बुक, बैंक बुक हम बनाते हैं. यस, कैश बुक जिसमें बैंक का भी कॉलम होता है. सो इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग कैश बुक, कैश अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है क्योंकि वो उसी फॉर्मेट में है. तो वो बैलेंस हम कैश बुक से लेंगे. सी इट इज मेंशन हियर, कैश एंड बैंक बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम कैश बुक. If an account does not have balance, it is ignored. अगर कोई भी अकाउंट है जिसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आ गया, कोई भी आपको बैलेंस नहीं मिला है, सर्कल अमाउंट आपको नहीं मिली है, सो उसे आपको इग्नोर करना है, वो आपको ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करना है. Then ledger accounts showing debit balances are shown in debit column for amount of trial balance, and the ledger account showing credit balances are shown in the credit column for amount of trial balance. Like यहाँ पे रमेश अकाउंट में जैसे डेबिट बैलेंस आया तो आपने डेबिट कॉलम में लिखा. यस, सेम जिस अकाउंट का जो बैलेंस है हम उसी कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे. देन purchase account always have debit balance which is shown in debit column of trial balance. सेम वे सेल्स अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसकी अमाउंट हम क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे. रिटर्न इन वर्ड्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस. यस, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट कॉलम में. सेम परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड का क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे. यस, एंड जीएसटी के बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. लाइक इनपुट जीएसटी, जो भी सीजीएसटी है, एसजीएसटी, जीएसटी है, यस, इट इज आर असेट. यस, वो हमारी असेट है, उसका डेबिट बैलेंस होता है. सेम आउटपुट जीएसटी हमारी लायबिलिटी है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है. यस, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस. स्टॉक हमारी असेट है, यस, उसका डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट कॉलम में आएगा. क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है विच इज गिवन हियर. Generally, closing stock does not appear in trial balance. It is usually given as an additional information or adjustment outside the trial balance. जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे तो उसमें ट्रायल बैलेंस दिया होगा और कुछ एडजस्टमेंट दी होगी. सो जनरली क्लोजिंग स्टॉक आपको हमेशा एडजस्टमेंट में ही दिया होगा. यस, एंड यू हैव टू रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली. यस, बट काफ़ी बार ट्रायल बैलेंस में अपेयर हो सकता है. इफ क्लोजिंग स्टॉक अपेयर इन ट्रायल बैलेंस, इट विल अपेयर इन द डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस. अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है, अगेन इट इज आर असेट. यस, सो सेम वो डेबिट कॉलम में ही आएगा. यस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है ना तो आपको एडजस्टेड परचेज दिया होगा. यस, ओपनिंग परचेज इस तरह से नहीं दिया होगा, एडजस्टेड परचेज दिया होगा. दैट विल बी क्लियर वाइल सॉल्विंग द सम्स. ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट सम के साथ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. देन अकाउंट्स ऑफ असेट, कोई भी असेट है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, यू नो दैट दीज आर असेट्स और असेट का बैलेंस डेबिट होता है. यस, सो उसकी अमाउंट हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे. सेम बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है. अगर डेबिट बैलेंस है तो हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट कॉलम में. एंड डेबिट बैलेंस हमारी असेट है, एंड अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट. यस, देन इट इज आवर लायबिलिटी, क्रेडिट कॉलम.
Then accounts of income and gain have credit balance because it depends on rule, debit all expenses, credit all income. So सारी income का credit balance होता है उसकी amount credit column में, एंड सारे एक्सपेंसेस लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है उसकी अमाउंट आप डेबिट कॉलम में लिखोगे. यस, देखो यहाँ पे समरी पूरी दी हुई है. डेबिट बैलेंसेस में क्या क्या आएगा, तो सारी असेट्स आपको रिकॉर्ड करनी है, ड्राइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. यस, एंड क्रेडिट बैलेंसेस में लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन. यस, then I'll share this PDF. See, theory questions are given that you have to write in your notebook.